Okay, okay, okay. So for today's we will see the next topics in the second unit. So in last lecture we have gone through the topic like basics of a basic structure of a C program and then their importance in C language. Under the basic structure we have just studied documentation section, link section, definition section, global declaration, main function and subprogram section. So in that particular part, anyone having any difficulty, any query, anything that you want to ask? Or is it okay? Okay, no problem. I just want to ask one question that what is the meaning of global declaration section? Simran? Okay, Anuradha. Okay, Anuradha, continue. Okay. And where we have to write that global declaration? Inside the main or outside or below? Exactly, outside of the main, and it means that above the main class, not in the main class, not below in the main class or below the main class. It should be the above the main class. Okay, that was a particular global declaration. Correct. Anyone want to say anything? Okay, no problem. So out of that 4 to 5 sections, documentation section, link section, definition section, global declaration section, the main function section is very important because we are not at all allowed to execute the program with the help of a compiler or with the help of a turbo C or any software without main function. आप main function के बगैर कोई भी program execute नहीं कर सकते. So that main function carries the declaration part as well as executable part, execution part. Okay. And later on in the sub program section we are having a multiple functions and their definitions, right? So just like that, if you consider the example of a keyboard, हमारे लैपटॉप को, कंप्यूटर को, मोबाइल को, every electronic device is having a some keys and the keyboards, right? So the main function of the keyboard is, anyone? Kalyani? Kalyani, am I audible? Yeah, exactly. Kalyani, am I audible? What is the main function of a keyboard? Exactly, no problem. Kalyani? Acha, okay. Okay, okay, no problem. Okay, no problem. Keyboard. That keyboard is having a multiple keys. Variety of keys combinations are also there. जैसे कंट्रोल V है, कंट्रोल C है, कंट्रोल A है, जो हमको बेसिक्स पता है. कंट्रोल अल्टर डिलीट है. So multiple keys and multiple combinations are there in the with the help of a keyboard we can perform. So basic role of a keyboard is to generate a data as an input. That data is generated and that generated data is given to the computer as an input, and then the computer or the processor processes that particular data. That is the basic working of a keyboard. So इसका फंक्शन अगर हम डिज़ाइन करते हैं कि कीबोर्ड का फंक्शन क्या है, तो इनपुट लेना या फिर इनपुट सिस्टम को देना, दो में से एक कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो, यानी इनपुट सिस्टम को देता है कीबोर्ड, ये उसका फंक्शन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रीन? जो स्क्रीन आपको दिखती है उसका क्या फंक्शन हो सकता है?
एग्जैक्टली, जो इनपुट हम कीबोर्ड से देते हैं वही आउटपुट या फिर जो भी जनरेटेड होता है, प्रोसेसिंग होता है, दैट आउटपुट विल बी शोन टू द shown by the system on a screen. So that is a function of a particular screen. So similarly, whenever we are going to use a particular C language, under the subprogram section there are various functions. Some of the functions are built-in function, यानी जो already defined है. built-in function को हम बोलते हैं defined function, जो पहले से defined है system में. Some of the functions are user defined function, जिसको हम user और being as a programmer हम उसको बनाते हैं हमारे हिसाब से और उसको फिर हम यूटिलाइज करते हैं. कि जैसे एक फॉर्मेट रहता है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, ये फॉर्मेट रहता है. अब अगर आप समझो टीचिंग प्रोफेशन में ले लीजिए कि आपका जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल के नीचे, यानी टाइम टेबल में फैकल्टी का नाम नहीं रहता, सिर्फ इनिशियल रहता है. फैकल्टी का नाम नहीं रहता, सिर्फ इनिशियल रहता है. सो इनिशियल इज जस्ट लाइक दैट HN वाटाने और HNW. ठीक है, ये एकदम शॉर्टकट में इनिशियल रहता है. जैसे CP के नीचे लिखा रहेगा सेक्शन ए में HNW, बाद में CP दूसरे सेक्शन बी सेक्शन का अगर रहा तो मे बी SZ के या फिर OAJ लिखा हुआ रहेगा, फिर D&E के लिए SZK रहेगा. तो ये जो नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, तो इट इज जस्ट व्हाट एग्जैक्टली, नाम वही है बट उसको शॉर्टकट में हमने बताया है. ठीक है, अगर ऐसे हम सिस्टम बनाते हैं एक छोटी सी कि जो फैकल्टीज़ के नाम कलेक्ट करें, तो उसमें 3 पैटर्न हो सकते हैं पूरा, यानी हेमंत नंदकिशोर वाटाने एक नाम आएगा, या फिर HN वाटाने एक नाम आएगा, या फिर HNW एक नाम आएगा. ऐसे 3 पैटर्न्स आ सकते हैं. ठीक है, तो इन 3 पैटर्न्स में से जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसने कौन सा पैटर्न सिलेक्ट करना चाहिए, ये हमें पहले बताना पड़ेगा. जैसे DDMMYY ये पैटर्न रहता है डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए. बहुत बार उल्टा भी रहता है, YYDDMM या फिर YYMMDD, ये भी रहता है. और आपकी जो 10th और 12th की मार्कशीट है जिसमें सरनेम फर्स्ट है, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, और जनरली फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड सरनेम. तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं, अलग अलग पैटर्न्स हैं, तो उसके रिलेटेड अगर डेटा जनरेट करना है, तो उसके रिलेटेड डेटा लेना है यूज़र से, so we require a function, and that function is not a built in function, यानी सिस्टम खुद बना के नहीं रखती. क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे अगर हमको अपना खुद का नाम पूछा तो हम क्या बताते हैं, फर्स्ट नेम बताते हैं, मिडल नेम बताते हैं, सेकंड लास्ट नेम बताते हैं. ठीक, वही साउथ में अगर जाते हैं तो वहाँ पे किसी को अगर नाम पूछा तो पी श्रीनिवासन, पी चंद्रशेखर, ए चंद्रशेखर, बाद में PT उषा. एनीवन नोज द फुल फॉर्म ऑफ PT उषा? और anyone knows the who is the PT Usha? Who is she? PT उषा कौन है, किसी को पता है? गर्ल्स है. बॉयज, एग्जैक्टली बॉयज को तो पता है, बट गर्ल्स को पता है क्या? ही इज शी इज एन एथलीट इन विच पर्टिकुलर गेम? एग्जैक्टली रनिंग. ओके, सो Olympic, Olympic, exactly. Who won the or who earned the Olympic medal for India, and she is the first lady. ठीक है? So that PT Usha, that sounds very small name, but really that it is PT. Anyone knows the full form of PT? हाँ, yes, Tejas. Yes, exactly. Piluwala Kanti Tekapara Usha. So that was a complete name. So अगर ऐसा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हमको बनाना है जिसमें सिर्फ फर्स्ट पर्सन का नाम लेना है, सो फर्स्ट नेम कौन सा, मिडल नेम कौन सा, लास्ट नेम कौन सा. अभी इसमें PT उषा,
तो अब यानी ये ऐसा हो सकता है कि पी यानी फर्स्ट नेम होगा, टी यानी मिडल नेम होगा और उषा यानी लास्ट नेम होगा, माइट बी, ये भी हो सकता है। या फिर अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं, ठीक है। जैसे मोमेडियम समाज में जो नाम रहता है वो तीन चार अलग अलग नाम्स रहते हैं, अब उसमें से हम कैटेगराइज कैसे करना। बाद में कुछ ऐसे भी नाम्स रहते हैं, जैसे आप नॉर्दर्न साइड में अगर जाते हो वहाँ पे अलग अलग नाम्स रहते हैं। सो इन ऑर्डर दैट the name of a person, if you want to take, it should be categorized in various parts, various यानी फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम, या फिर लास्ट नेम मिडल नेम फर्स्ट नेम, या फिर जो भी है, तो ऐसे अलग अलग टाइप्स में हो सकता है। So if you want to design such a particular function, so that function is nothing but the user defined function, यानी आप डेटा कैसे एक्सेप्ट करोगे आपके छोटे से सॉफ्टवेयर में या फिर आपके एप्लीकेशन में, दैट इज डिपेंड्स टू यू। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सिर्फ सरनेम लेना चाहते हो, कि नाम लेना चाहते हो, या फिर पूरा नाम लेना चाहते हो, या सिर्फ इनिशियल लेना चाहते हो। सो दैट इज नथिंग बट द यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। सो विच अलाउज यू टू क्रिएट योर ओन फंक्शन, आप आपका खुद का एक फंक्शन डिजाइन कर सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू टूल्स, राइट। सो दैट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, देन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये हमने पूरा देखा था। we'll just recall it quickly. The documentation section consists of a set of comment lines giving the name of the program, the author and the details, यानी ये प्रोग्राम जो बनाने वाला है उसका नाम होना चाहिए, उसके डिटेल्स होने चाहिए कि ये प्रोग्राम किस पर्टिकुलर ऑपरेशन के रिलेटेड है, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा, विच प्रोग्रामर वुड यू लाइक टू यूज इट लेटर, कौन उसको यूज कर सकता है बाद में, ये भी उसमें मेंशन किया होना चाहिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। देन लिंक सेक्शन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर टू लिंक फंक्शन फ्रॉम द सिस्टम लाइब्रेरीज, कि जैसे कि मैं अगर आपको बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, तो मुझे रिस्पॉन्स में कोई गुड इवनिंग बोलता है क्या? एनीवन? नो, नो। इफ आई से हेलो एवरीवन, ठीक है, सो कोई ऐसा बोलता है क्या कि गुड मॉर्निंग सर? हेलो का रिस्पॉन्स गुड मॉर्निंग से आता है क्या? गुड आफ्टरनून से आता है क्या? नहीं। अब ये किसने बताया या फिर ये किसने डिसाइड किया? जब भी हम बचपन में सीखे कि भाई अगर किसी ने गुड मॉर्निंग बोला या फिर हाय बोला तो हम उसको हेलो बोलते हैं, हेलो बोला तो हाय बोलते हैं, या फिर हाय हाय हेलो हेलो जो भी है, ठीक है, ग्रीट करते हैं। बाद में गुड मॉर्निंग बोला तो गुड आफ्टरनून नहीं बोला जाएगा, गुड नाइट तो बिल्कुल ही नहीं बोला जाएगा कि कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है हम उसको रिस्पॉन्स में बोल रहे हैं गुड नाइट, सो जा भाई तू, ठीक है। वो बोल रहा है कि तेरी मॉर्निंग गुड हो और हम बोल रहे हैं उसकी तेरी नाइट गुड हो जाए, तू सो जा। तो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। सो what we learn in the childhood, responses on a one particular action, there is a reaction or the response, we can say that, okay. So if someone say few things regarding to the good afternoon, good morning, good night, whatever, we will respond the similar one, right. So if someone smiles to you, you will definitely get a smile back, okay. If someone throws the anger towards you, you will throw the angers to थ्रो बैक, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल फिनोमिनन है दैट वी नो, बट ये कहाँ पे है? हमारी सिस्टम लाइब्रेरी में, यानी हमारे ब्रेन में, ठीक है। तो सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिंक सेक्शन, दैट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी न्यू पर्सन या फिर कोई भी नॉन अननोन पर्सन आपको फर्स्ट टाइम इन अ डे मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे भी मिलता है, आजकल अभी फ़िलहाल तो ऑनलाइन मिल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से फिर से पैंडमिक वापस आ रहा है, कोरोना वापस आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि और 2 3 4 महीने ऐसे ही मुलाकात होगी, ऑफलाइन मुश्किल हो गई है, ठीक है। सो दैट इंस्ट्रक्शन इज जस्ट व्हाट, इट इज अ सम ऑफ द कमांड्स, सम कोड, सम ग्रीटिंग्स और सम गेस्चर। हम किसी को हाय करते तो हाथ हिलाते हैं, किसी को अगर नमस्कार करना है तो हम हाथ जोड़ते हैं, शेक हैंड तो अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते पेंडेमिक की वजह से, फिर भी कुछ लोग करते हैं, कोई बात नहीं, फिर सैनिटाइज़र लगा लेते हैं हाथ पे,
वो भी है। तो ये जो चीज़ें हैं, दैट वाज ऑल आर द इंस्ट्रक्शंस एंड दैट शुड बी कंपाइल। हमारे दिमाग में वो कंपाइल होती है कि अगर किसी ने हमारे साथ शेक हैंड किया तो मे भी उसके हाथ को जर्म्स हो सकते, तो इमीडिएटली हम क्या कर लेते हैं, हमारा खुद का हाथ सैनिटाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सैनिटाइजर। तो ये किसने बताया आप? तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी है, पढ़ी है, सुनी है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में है। दैट इज़ व्हाट आवर सिस्टम लाइब्रेरीज, वो स्टोर्ड है हमारे दिमाग में। दैट वाज अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी। So in the case of computer also, the link section provides the instructions to the compiler to link the function from the system libraries. जो करंट फंक्शन प्रोग्राम में लिखा हुआ है उसकी लिंकिंग सिस्टम में जहाँ उसके रिलेटेड लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती है उसके साथ लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यानी बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को अच्छे से बात करते हैं और वो बहुत ही टेढ़े मुंह से बात करता है हमारे साथ, तो हम क्या बोलते हैं उसको, ये बहुत ही ऑरोगेंट है। करेक्ट। तो उसकी जो सिस्टम लाइब्रेरी है मे भी वो डिफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि हम तो अच्छे से बात कर रहे हैं, वो अपने हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा। राइट। वो कुछ तो भी गलत तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहा है, यानी रूडली बिहेव कर रहा है। ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग विल बी हैपन इन नॉर्मल केस, बट इन केस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज नॉट हैविंग एनी इमोशंस, नो फटिक, नो आईक्यू, इवन इफ वी कैन से दैट खुद का उसका दिमाग नहीं है कि वो खुद डिसाइड कर सके अभी फ़िलहाल तक कि भाई इसने तो मुझे पिछले बार 12 से 13 घंटे काम करने को लगाया था। कंप्यूटर बोल सकता है ना कि कुछ कुछ लोग रहते हैं ना, वो कंप्यूटर को 12 12 13 13 15 15 घंटे काम करने को लगाते हैं। अब तो इसका मैं काम ही नहीं करके दूंगा, बिल्कुल। इसने मेरे को बहुत बहुत तकलीफ दी। मैं इतना हीट हो रहा था, मेरा फ़ैन जो है वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा था, और ये मेरे को फिर भी गेम खेलने के लिए मजबूर कर रहा था। तो ऐसे इमोशंस कंप्यूटर के पास नहीं है, वो अच्छी बात है। करेक्ट। बट वी हैव, being as a humans, that we have that emotions. So there may be the problems in case of a system libraries in case of humans, but the computer does not. Then the definition section defines all the symbolic constants, यानी जो भी symbolic constants required रहते हैं एक particular program में, so for that the particular definition section is responsible. There are some variables that are used in more than one function, such the variables called as a global variables. जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, किसी ने आंसर दिया था, so that global variable is nothing but the one variable which will be used in all the functions. We don't have to write it again and again, but once you write above the main function तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने या फिर हमारे पिताजी ने या फिर उनके पिताजी ने जो एक घर बनाया है, उस घर में हम सभी रहते हैं 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल में, बचपन से लेकर तो बुढ़ापे तक या फिर जो भी है। ठीक है। कंडीशंस आर अप्लाई। अगर किसी को जॉब के लिए बाहर जाना है, मैरिज हो गया है तो बाहर जाएंगे, तो वो अलग बात हो गई। बट हम उस घर में रहते हैं, यानी वो पर्टिकुलर रिसोर्स को हम यूटिलाइज करते हैं। करेक्ट। सो दैट रिसोर्स इज एवरीवन्स, किसी एक का हम ऐसा नहीं बोलते, वो सबका है, सब शेयर करते हैं। होम जो रहता है हमारा वो हम सब शेयर करते हैं। सो दैट इज व्हाट। so there are some variables that are used in more than one function। अब एक से ज़्यादा अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं फंक्शंस को, तो डेफिनेटली उसकी ज़रूरत बार बार पड़ सकती है, तो इसलिए हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं। करेक्ट। सो दैट उसको बार बार हम डिक्लेयर करने की ज़रूरत ना पड़े, और उसको एक्सेस करने की जब भी ज़रूरत पड़े हम उसको एक्सेस कर पाएँ, क्योंकि वो ग्लोबली डिक्लेयर्ड। तो दिस सेक्शन इज ऑल्सो डिक्लेयर ऑल द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र जो डिफाइन करता है उसको भी डिक्लेयर करना पड़ता है, उसका भी डेफिनेशन बतानी पड़ती है कि दिस विल बी द फंक्शन दैट विल act as a user defined function, and with the help of that user defined function we can achieve the results which are intended by the programmer। then the declare in every C program that must have a one main function, जैसे हमने डिस्कस किया इसके रिलेटेड, अगर मेन फंक्शन नहीं रहता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। डिक्लेरेशन पार्ट रहता है उसमें और एग्जीक्यूटेबल पार्ट रहता है। then declaration part declares all the variables used in the executable part. There is at least one statement
इन द एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल और नीचे कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं किया, तो आउटपुट तो कुछ भी नहीं आएगा। देयर मस्ट बी द वन स्टेटमेंट लाइक प्रिंट एफ डबल कोट्स में वेलकम टू द सी वर्ल्ड, समुंदर वाला नहीं, सी ए बी सी वाला सी वर्ल्ड, ठीक है, वेलकम टू द सी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमको सिर्फ प्रिंट करना है, सो दैट कम्स अंडर द एग्जीक्यूटेबल पार्ट, यानी एक तो भी स्टेटमेंट होना चाहिए। Again, opening parenthesis and closing parenthesis that are necessary. The program execution begins at the opening and closing that we know. All statements in the declaration and executable part that will end with a semicolon. यानी C के लैंग्वेज में फुल स्टॉप को सेमीकोलन बोला जाता है। The subprogram section contains all the user defined functions are called in the main function. उनको हम main functions में कॉल करते हैं। जब यूज़र डिफाइन फंक्शन मेन फंक्शन में कॉल किया जाता है तब वो फंक्शन मेमोरी में लोड किया जाता है और उसको जो भी रोल दिया गया है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। सो दैट विल सी इन द डायग्राम ऑल्सो। देन द यूज़र defined functions are generally placed immediately after the main function, although they may appear in any order, ठीक है, यानी ऊपर नीचे तो हो जाएगा, यानी चलता है, बट इट शुड नॉट बी इनसाइड द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर जो भी बॉडी ऑफ मेन हमने देखी है यहाँ पे, ये मेन फंक्शन जिसके अंदर डिक्लेरेशन पार्ट है दिस एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट है, इसके अंदर कभी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी जाती है, वो बाहर लिखी जाती है, यानी मेन फंक्शन के या फिर मेन फंक्शन का जो सेक्शन है उसके नीचे वो लिखी जाती है। ओके, देन ऑल sections except the main section may be absent when they are not required। ऊपर दिए हुए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, डिक्लेरेशन, देन लिंकिंग, ऑल ये एब्सेंट हो सकते हैं, यानी एक आध बार नहीं है तो ठीक है चल जाएगा, बट अगर मेन फंक्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ अ सी और एग्जीक्यूशन। देन इम्पोर्टेंस ऑफ अ सी लैंग्वेज दैट वी आर लुकिंग। The increasing popularity of a C is probably due to its many desirable qualities। अब इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी अगर C में कुछ है तो जो अभी तक हमने देखा कि C लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज है, एक असेंबली लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी जो C लैंग्वेज को हम बोलते हैं। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो तो अंडरस्टूड नहीं हो सकती इजीली, क्योंकि आफ्टर 2 to the power 6 उसके बाद जो डिजिट आते हैं, 7 के बाद जो डिजिट आते हैं, तो उसका कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट जाता है हमारे लिए, ठीक है। कैलकुलेटर के हिसाब से तो हो जाएगा, बट उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना, वो डिजिट फाइंड आउट करना डेसिमल में, वो डिफ़िकल्ट जाता है, उसको टाइम लगता है। तो मशीन लैंग्वेज जो बाइनरी लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट है। देन बट ये कंप्यूटर के लिए बहुत ईजी है। बट उसके बाद आती है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज भी हमारे लिए कैसे कुछ इंस्ट्रक्शन हमको याद रखनी पड़ती हैं। मूव है, जंप है, देन जंप ग्रेटर देन और इक्वल टू है, बाद में ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमको याद रखनी पड़ती हैं और वो इजीली याद भी नहीं रहती है। ओके, so later on when we are talking about the C, which is a portable language actually. Why it is portable? Because if you write the code on a one laptop or desktop or mobile, किसी भी एक प्लेटफॉर्म में अगर आपने एक नोटपैड में, सादा नोटपैड में कोड अगर लिखा है सी का, वही एज इट इज़ आपने वो कॉपी किया दूसरे कोई भी सी एग्जीक्यूटर में या फिर जिसमें सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। वेदर that system is having Windows 7, Windows 10, Windows we can say that any versions of Windows, or even if in Linux, even if in Unix और Macintosh, Mac OS, कोई भी प्रकार की OS, उसमें अगर आप C का प्रोग्राम लिखते हो और उसमें कंपाइलर C का अवेलेबल है, in that case you can directly execute the C program. So that is the portable feature provided by the C language. So that's why it is having a desirable qualities. It is robust language
whose rich set of built-in functions and operators can be used to write any complex program. अब रिच बिल्ट इन फंक्शन यानी क्या? तो बहुत से ऐसे फंक्शन जो डे टू डे लाइफ में आप जब सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हो, आपको यूज़ करने पड़ते हैं, तो ऑलरेडी उन्होंने दिए हुए बिल्ट इन, रेडीमेड। बिल्ट इन यानी जिसको हम रेडीमेड बोल सकते हैं। और स्टिच करके जो अब हम क्लोथ्स वगैरह वेयर करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। उसको हम उस चीज़ से को रिलेट कर सकते हैं। सो बिल्ट इन फंक्शंस आर देयर, so we don't have to need to worry about that whether that function can work properly or not. It is already built in, we can directly access it. So that kind of robustness in case of a C language. Then C compiler combines the capabilities of an assembly language with the features of a high level language, and therefore it is well suited for writing both system software and business packages. अब जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं, सिस्टम रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो देयर कम्स द लैंग्वेज दैट इज नथिंग बट द असेंबली लैंग्वेज विच कन्वर्ट्स इनटू द मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ असेंबली। तो ये जो चीज़ है दैट सी लैंग्वेज उसमें बहुत अच्छे से कंपेटेबल है, कैपेबल है। प्लस ये हो गया सिस्टम के रिलेटेड। अगर मुझे कुछ एप्लीकेशंस बनाने हैं, जैसे अभी फ़िलहाल आप अगर देखते हो तो बहुत से ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, बाइजू है, बाद में बहुत से ऐसे वाइट हेड जूनियर है, ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस आए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू द सेम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच विल बी कैरिड आउट इन योर स्कूल और कॉलेज। जो स्कूल कॉलेज में कैरिड आउट होती है उसी प्रकार से यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, गूगल मीट है, बाद में जूम है, वेबएक्स है, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसको हम बिजनेस पैकेजेस बोल सकते हैं। दे आर डूइंग द बिजनेस, राइट? सो इफ दे आर ऑफरिंग समथिंग टू यू विच इज़ नॉट एट ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट्सअप भी हम यूज़ करते हैं, फेसबुक भी यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी यूज़ करते हैं, ये फ्री कभी भी नहीं होता है। इट फॉर दैट वी हैव टू पे। तो जो पे रहता है वो इन टर्म्स ऑफ व्हाट योर डेटा पैकेट्स, डेटा चार्जेस, जो डेटा आप यानी रिचार्ज करते हो या फिर बिल पे करते हो, इन टर्म्स ऑफ दैट। एंड इवन इफ फ्यू एडवर्टाइजमेंट दैट वी विल गेट ओवर देयर, so because of that they will get the money, that is the business packages. So in fact many of the C compilers available in the market are written in a C। जैसे C compiler जितने भी हैं या फिर कंप्यूटर के जो कंपाइलर्स हैं वो मैक्स टू मैक्स C में लिखे हुए हैं। then programs written in C are efficient and fast। अब इनकी एफिशिएंसी टेस्ट की गई बाकी कुछ लैंग्वेजेस के साथ कंपेयर करके, और फास्टनेस भी चेक किया गया। सो इट कम्स दैट scientist comes to that particular point that C is more efficient and fast as compared to the previous languages or current languages also. This is due to its variety of data types and powerful operators। ये ऑपरेटर का पार्ट अभी हमारा चालू हो जाएगा इस यूनिट में। अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन लॉजिक। हेलो, right now am I audible? Either in, okay, either any fluctuation in my voice? Okay, okay, no problem. So that particular C language, that programs are written in a C which are more efficient and fast. So this is due to its variety of data types and powerful operators। जैसे operators में arithmetic है, assignment है, logical है, then कुछ built-in operators भी है। तो ये अलग अलग टाइप्स के 7 से 8 ऑपरेटर्स हैं कि जो बहुत से वेराइटी ऑफ डेटा को, अलग अलग डेटा को एक्सेस करने में सफिशेंट, ऐसा बोल सकते हो कि दे आर द टूल्स। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टूल किट, डेटा कैसे भी अगर आप देते हो तो सी उसको बराबर उस टूल किट के हिसाब से मैनेज करके उसको बाय फॉरगेट कर देता है और मैनेज करता है प्रॉपरली। सो दैट वाज अ पावरफुल पैकेज। वो सी का पावरफुल पैकेज, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर। सो इट इज़ many times faster than basic।
बेसिक ये जो लैंग्वेज थी इससे बहुत ज़्यादा फास्टर है. फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट अ वेरिएबल फ्रॉम 0 to 15,000, राइट. 0 से लेके तो 15,000 तक आपको उसको इंक्रीमेंट करते जाना है. 1+2, 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, ऐसे करते 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 हम 15,000 तक जाने वाले हैं. It takes about the 1 second in a C language or the C, while it takes more than 50 seconds in any interpreter that is basic. ने बेसिक को कंपेयर किया सी के साथ, एक टास्क दिया 0 से 15,000 तक हमको इंक्रीमेंट करते जाना है, तो वो लेगा सिर्फ 1 सेकंड, और वही बेसिक लेगा 50 सेकंड. ठीक है, दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस. ऑलमोस्ट 1 मिनट लगेगा बेसिक के लिए, बट सी बस 1 सेकंड में कर देगा, उसको अचीव कर लेगा. देन देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स इन आंसी सी. आंसी का फुल फॉर्म ANSI. Anyone quickly? आंसी का फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, दैट सी. उन्होंने जो सी बताई थी, जो हमने इसके पहले लास्ट लेक्चर में देखा उसका पूरा हिस्ट्री, दैट पर्टिकुलर पार्ट. NCC and its strength lies in its built-in functions, built-in data types, built-in functions. These are the strength of a C language. ये बहुत बड़ी strength है C language की, and just because of that the C language is much more used since 1972 till date. अभी तक वो यूज़ होता. Then C is highly portable. This means that the C program written for one computer, जो अभी मैंने डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया, that C program written for one computer can be run on another computer with a little or no modification. थोड़ी बहुत एक आध बार मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, otherwise there is no need. Portability is important if you plan to use a new computer with a different operating system. अगर आपके पास पुराना कंप्यूटर है, उसमें बहुत सारा डेटा है आपका जो प्रोग्रामिंग का है वो आपने किया है, और एज इट इज़ आपको अगर नए कंप्यूटर में चाहिए विथ अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दैट केस सी विल नॉट डिसअपॉइंट यू. सी विल डायरेक्टली कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर programs from older operating system to the newer operating system, and we can directly access it. So that kind of feature leads to the highly portability of a particular language, that is a C language. C language is well suited for structured programming, thus requiring the user to think of a problem in terms of a function module or a block. Structured, when we call as a structured, in that case we'll have a one map. In that map we are having a blocks, small blocks, and within that particular blocks there is a some function will carry out. कुछ ना कुछ उस blocks में होगा, उसका आउटपुट जनरेट होगा, वो आउटपुट हम नेक्स्ट ब्लॉक को देंगे एज एन इनपुट. उसमें भी कुछ प्रोसेसिंग होगा. दैट प्रोसेस पार्ट विल बी कैरिड आउट, विल जनरेट द न्यू आउटपुट, एंड दैट विल गिवन टू द नेक्स्ट ब्लॉक एज एन इनपुट, एंड सो ऑन. ऐसे हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगा, उसका आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट होने के बाद वो नेक्स्ट ब्लॉक को जाएगा एज एन इनपुट. दैट particular term is treated as a structured programming, and it divides the particular function into the number of modules or the blocks. A proper collection of these modules would make a complete program. जैसे अगर कोई बहुत बड़ा लेसन है या फिर कोई पैराग्राफ है जिसको आपको सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस पैराग्राफ में से, जैसे इंग्लिश में बहुत से पैराग्राफ्स रहते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रहते हैं. जैसे कल एमपीएससी का पेपर था, मैं इन्विजिलेटर था, तो बहुत से ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पे जो हार्डली हार्डली 1 या 1.5 मिनट में पूरे 2 पन्ने का जो पैराग्राफ था, मराठी में भी था, हिंदी में भी था आई गेस, या फिर इंग्लिश में था, तो पूरा का पूरा 2 मिनट में उन्होंने रीड कर लिया. और रीड भी कर लिया, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, उनको हाईलाइट भी किया और सर्कल भी किया. So that much of practice requires in order to find out the solutions on the particular question asked in the paper. तो क्विकनेस
जो है उस पर्टिकुलर पूरे पैराग्राफ को डिवाइड करना या फिर पर्टिकुलर ब्लॉक्स को मॉड्यूल्स को डिवाइड करना और उसको फिर सॉल्व करके उसका जो भी आंसर जनरेट होगा वो दूसरे मॉड्यूल के साथ कोप अप करना. दैट वाज द रोल ऑफ अ सी लैंग्वेज. अ प्रॉपर कलेक्शन ऑफ these मॉड्यूल्स would make a complete program. This modular structure makes a program debugging, testing and maintenance easier. जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं, कुकिंग रिलेटेड रहे या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड रहे, तो शुरुआत से अगर उसके पैरामीटर्स पर हम बारीकी से ध्यान से अगर दें, वन बाय वन चेक करते अगर जाए, तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी. और वही अगर हम उसमें से कई सारी चीज़ें चेक करने की स्किप कर दिया, हम बाद में चेक कर लेंगे, बाद में देख लेंगे या फिर एट द एंड हम उसको फिर रेक्टिफाई कर देंगे, तो मे बी इट हैपन्स दैट कुछ चीज़ें बन जाने के बाद वो रेक्टिफाई नहीं होती. करेक्ट. एक बार बन गई तो वो बन गई, तो उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते. तो यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर चेक करते जाते हो, जिसको बोला जाता है डिबगिंग, checking the errors in our current line, that is known as a debugging, then testing and the maintenance, that becomes easier if the language is a structured programming and the C language is a structured programming language. Then the last importance, that an important feature of a C, its ability to extend itself, यानी वो expand हो सकती है या फिर extend हो सकती है. कि जैसे हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल की रैम रहती है, रैम एक्सपांड हो सकती है क्या कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू? एनीवन? रैम मोबाइल की, नो आई डोंट वांट टू गो टू द आउटसाइड. यानी आउटसाइड मीन्स मुझे कोई वेंडर के पास नहीं जाना है, मैं मेरे मोबाइल को मेरे घर पे ही बैठे बैठे रैम को एक्सटेंड कर सकता हूँ क्या 8 GB का 12 GB? No hardware changes. I just say that there should not be any hardware changes. In that case, if you want to do, it is quite impossible, right? If you remove the original RAM and install the another RAM, so that may be the possibility. अगर आपके पास मोबाइल में जो भी रैम होगी, स्लॉट्स होगा क्या जो भी रहता है, जनरली सिस्टम में रहता है, तो आप उसको एक्सपांड कर सकते हो. हार्ड डिस्क को भी आप एक्सपांड कर सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल. बट अगर आपका मोबाइल है जिसमें जो एक पर्टिकुलर हार्डवेयर कंसेप्ट है, हार्डवेयर की चीज़ें, उसको आप विदाउट रिमूव करके उसको एक्सपांड करना चाहते हो थ्रू द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, थ्रू द हेल्प ऑफ सम commands, so it is quite impossible. But in case of a C language, if you add any user defined function, it is quite good for the C language. वो उसको एडाप्ट कर लेता है, उसको इनहेरिट कर लेता है, अपने पास रख लेता है कि अगर कोई नया फंक्शन आ जाता है तो उसको रख लेता है. तो ऐसे करते 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 उसके खुद का जो डेटा रहता है या फिर उसका जो ह्यूज डेटाबेस रहता है वो इम्प्रूव होता जाता है. ठीक है. जैसे आपको पता होगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ना, एक नाम सुना है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल दुनिया से जो पॉपुलर वर्ड्स है वो उठाती है और अपनी डिक्शनरी में ऐड करती है. आई गेस इन 2020 दे हैव एडेड द वन वर्ड फ्रॉम इंडिया, आत्मनिर्भर, राइट? तो ये जो वर्ड है वो ऑक्सफोर्ड वालों ने ऐड कर दी. तो उससे क्या होता है, इंग्लिश वैसे देखा जाए तो इंग्लिश में वर्ड्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अदर रीजनल लैंग्वेजेस, बट वो दुनिया के ऐसे वर्ड्स को अपने डिक्शनरी में ऐड करते 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 सालों से कर रहे हो, बहुत सालों से कर रहे हैं, ऐड करते 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 उन्होंने इंग्लिश को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया, बहुत बड़ा कर लिया कि आज वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई. बिजनेस रिलेटेड बोलने के लिए तो अलग बात है, बट मैंने कम्युनिकेशन के लिए अलग बात है, बट मोस्टली 199 कंट्रीज है, ऑलमोस्ट 198 199, तो ऑलमोस्ट 100 या फिर मोर देन 100 कंट्रीज़ में इंग्लिश को एज अ बिजनेस लैंग्वेज का दर्जा है. ठीक है. कम्युनिकेशन की बात आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट एज अ बिजनेस इंग्लिश इज़ यूज. ठीक है. बट कुछ है एक्सेप्शंस उसमें, जैसे चाइना है, जापान है, वहाँ पे बिजनेस में भी वो अपनी खुद की ही लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं. और वो स्किल से ज़्यादा वो उनकी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर सामने वाला हमारी लैंग्वेज जानता है
पहचानता है, बोलता है, लिखता है, तो हम उसके स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप कर देंगे वो जब हमारे साथ रहेगा। बट अगर उसका लैंग्वेज ही नहीं है हमारी तो उसकी स्किल कहाँ से डेवलप होगी? दैट वाज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंग्वेज। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या करती है, बहुत से वर्ड्स ऐड करती है अलग अलग दुनिया में से, अलग अलग जहाँ पे भी वो इन्फ्लुएंस वर्ड्स रहते हैं वो ऐड करती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गेट्स एक्सपांडेड। सी लैंग्वेज डज द सेम, ability to expand itself. So C program is basically a collection of functions that are supported by a C library. We can continuously add our own functions to the C library. यानी आप आपके खुद के फंक्शन जो है वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ फंक्शन, द सी प्रोग्रामिंग टास्क बिकम सिंपल। ठीक है, तो वो जो ऐड करते जाते हैं उसकी वजह से उसका डेटा जो भी रिजर्व है, फंक्शन रिजर्व जो है वो बढ़ते जाता है। क्योंकि पहले जब उन्होंने डिज़ाइन किया था 1972 में, किसने किया था सी लैंग्वेज डिज़ाइन? हु डिज़ाइन सी लैंग्वेज? डेनिस रिची, एग्जैक्ट। So Dennis Ritchie designed, developed the C language, and at that time, what they have the need, they just have to need some data processing, data storage, and only limitation, only limited data that they have to access. Okay? In terms of MBs or maybe in terms of okay MBs actually, but later on when there is a data of a GB, TB, so your kernel is more powerful, multiple things are required, applications are made on mobile phones, even if there is a sixth generation computers are there, quantum computers are there. So in that case the C should be evolved, वो भी इवॉल्व होनी चाहिए। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है सी के रिलेटेड कि वो खुद को बदलती गई, सी लैंग्वेज खुद को बदलती गई, समय के हिसाब से खुद को ढालती गई, और इसी वजह से 50 साल से भी आज सी लैंग्वेज को पढ़ाया भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, यूज़ भी किया जाता है, तीनों चारों चीज़ें उसके हैं। So that is what about the C language and their importance. Okay, so we will see in next lecture that describe the C program execution life cycle in details. Okay, so actually four cycles are there, or four stages are there, that we will see in the next lecture. So